Good morning everyone. Today we will do yoga chapter number 4 physical education for class +1. First of all we will do the meaning of yoga. The word yoga has been derived from the Sanskrit word yuj, which means to join or to unite. Yoga is the union of the individual soul with the absolute and divine soul. Yoga also means the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspects of human being. Yoga is the science of development of a person's consciousness. In other words, we can say कि योगा संस्कृत वर्ड के युज से लिया गया है, जिसका मीनिंग है आत्मा का परमात्मा से मिलन. Now, next topic is importance of yoga. There are so many importance of yoga, but here we are going to discuss only 12 points. Number 1, physical priority. Number 2, cure and prevention from disease. Number 3, reduce mental tension. Number 4, beautification of body. Number 5, provide relaxation. Number 6, keeps the correct posture of body. Number 7, yoga can be performed easily. Number 8, spiritual development. Number 9, increase flexibility. Number 10, reduce obesity. Number 11, improve health. And last, number 12, enhance moral and ethic values. Importance of yoga. Number 1, purity. Here we are talking about physical purity. Internal organs of our body can be cleared by various yogic exercise. As per Ayurveda, our body is made of Vata, Pitta and Kapha. To remain healthy, balance of Vata, Pitta and Kapha in our body is necessary. Dhoti, Nauli, Basti, Kapalbhati, Tratak, etc. are such yogic exercises which keep the internal organs of our body in a clean state. In other words, we can say that कि हमारी जो body है ये वत, पित्त और कफ से बनी है. अगर हमने अपने आप को फिट रखना है तो हमें इन तीनों का एक बैलेंस होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा नौती, धोती, त्राटक, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं हैं, इनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की प्यूरिफिकेशन होती है और क्लीन होते हैं. सेकेंड, क्योर द prevention from disease. Yoga not only prevent many diseases but also cure them. Various yogic exercises increase the immunity of the body. Number 3, disease such as asthma, high BP, blood pressure, stress, back pain, uric disorder, etc. can be prevented as well as can be cured by the yogic exercises. इसमें कहा गया है कि जितनी भी अस्थमा है, बीपी है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी हम थ्रू योगा इन सब डिजीज से क्योर भी कर सकते हैं और इनसे प्रिवेंशन भी हमें मिल सकती है. जैसे अस्थमा के लिए देयर आर सो मेनी आसन्स जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन. सेम वे बीपी के लिए ताड़ासन, भुजंगासन एंड शवासन. बैक एक के लिए वक्रासन, ताड़ासन एंड भुजंगासन. ये कुछ एक इस तरह के आसन हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं और इन्हें क्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिड्यूस मेंटल टेंशन. योगा हेल्प इन रिड्यूसिंग द मेंटल टेंशन. प्रत्याहार, ध्यान धारणा एंड ध्यान play vital role in reducing the mental stress. Asan like Makrasan, Shavasan, Shalavasan and Bhujangasan are the beneficial for releasing stress and tension. इसमें कहा गया है कि योगा से हमें मेंटल टेंशन हमारी रिमूव होती है.
कुछ एक जैसे ध्यान है, धरना है, प्रत्याहार है, इस तरह की योगिक क्रियाएं हैं जिनसे कि हम अपने आप के मेंटल स्ट्रेस से रिलीव कर सकते हैं। Reduce obesity and beautification of body. Obesity is become a worldwide problem. Obesity makes a person prone to many diseases. Research studies have shown that mental tension and stress could be one of the reason for obesity. Pranayam and yogic asanas release mental stress, reduce obesity and make body strong and perfect. Mayurasana is one of such asanas. इसमें हम कह सकते हैं कि जो ओबेसिटी है, वो जो भी इंसान ओबेस है वो उसकी कहीं ना कहीं ब्यूटी में वो थोड़ा सा लैक कर जाता है। हर आजकल का जो टाइम है, हर इंसान आउटर ब्यूटी को प्रेफरेंस ज़्यादा देता है। बट अगर हम डेली बेसिस पे योगा करते हैं तो इससे हम ओबेसिटी के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल। Number 5 provides relaxation. Rest and relaxation are essential for removing fatigue. Research studies have shown that yogic asanas and pranayam relax the body and mind. Padmasana, Shavasana and Makrasana are some of such asanas. इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी मशीन को डे एंड नाइट जब हम चलाते हैं तो एक टाइम पे वो मशीन भी गर्म हो जाती है और खराब हो जाती है। सेम वे अगर हम डे एंड नाइट एक मशीन की तरह काम करते रहेंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं देंगे, तो एक दिन हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल हो। इसके लिए हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है और ये रिलैक्सेशन हमें योगा से ही मिलती है। योगा में कुछ एक इस तरह के आसन्स हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, शवासन एंड मकरासन। Number 6 keeps a correct posture of body. Postural deformities are very common nowadays due to lifestyle followed which affect efficiently and negatively. Doing yoga asana regularly, a person can not only have the correct posture but can also cure the postural deformity. Vajrasan, Sarvangasan, Mayurasan, Chakrasan and Bhujangasan etc. इसमें कहा गया है कि योगा करने से जितनी भी पोस्टरल डिफॉर्मिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। पोस्टरल डिफॉर्मिटीज मीन्स जैसे बो लेग्स, काइफोसिस, लार्डोसिस, ये इस तरह की पोस्टरल डिफॉर्मिटीज हैं जो कि अगर किसी भी पर्सन को होती है उससे उस पर्सन की फिजिकली अपीयरेंस खराब हो जाती है और उसे डे टू डे अपना लाइफ का काम करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। योगा करने से आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है जिससे कि आपके सारे जॉइंट्स एंड बोन्स जो हैं बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, जिससे कि आपकी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। Yoga can be performed easily. In fast life of today, everyone comes to be very busy, hardly any time left for us. During yogic exercise, we need a small space, whereas other need much of money and time. इसमें कहा गया है कि योगा जो है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप योगा जो है एक छोटे से रूम में भी कर सकते हैं, छोटी सी बालकनी में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए ना तो ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, ना ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू विल डू डेली 20 to 30 मिनट योगा, देन इट्स मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा योगा जो है वो आपकी बॉडी को काम करेगी और आपकी डेली जो बिजी लाइफ है उससे आपको रिलैक्स करेगी।
Spiritual development. One can have good control on mind by doing yogic exercise and move towards the spiritual heights. Padmasana and Siddhasana enhance the meditation power. Pranayam is also useful for spiritual development. योगा में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही प्लेस है. जो भी योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं उनका माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है, उनका माइंड एंड बॉडी जो दोनों ही प्यूरिफाई हो जाते हैं. माइंड जो है वो बैड थॉट से प्यूरिफाई हो जाता है, उसके माइंड से बैड थॉट्स निकल जाते हैं और बहुत ही सिंपल लिविंग की तरफ ध्यान चला जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही रिलैक्स करता है. Importance of yoga. Increase flexibility. Flexibility is very significant as it helps in movement of the body efficiently. Muscles become more flexible and prevent sports and other injuries. Chakrasana, Dhanurasana, Halasana, Bhujangasana, etc. are very beneficial in increasing body flexibility. योगा का में फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है. इफ़ यू विल डेली डू योगा देन आपके जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशंस बढ़ जाती है, जिससे कि आप अपने डे टू डे लाइफ का काम बहुत ही इजीली कर पाते हैं. मोर ओवर अगर किसी भी पर्सन में फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसको इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. Reduce obesity. Very common problem nowadays. Regular yogic exercise like pranayam and asanas reduce obesity. Research studies have shown that obesity is also caused by mental stress and tension. Meditative asanas are the perfect solution for this condition. Obesity जो है वो आज के लाइफस्टाइल में जैसे एक तरह से फिट हो गई है. हर 5 में से 3% जो है वो ओबेस है. ओबेसिटी का मेन रीज़न जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स है, जो कि आज के टाइम में जिन्हें बिल्कुल चेंज करना डिफ़िकल्ट हो गया है. बट हम उसे थ्रू योगा, थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस हम उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. कुछ एक इस तरह के आसन्स हैं जिससे कि हम डेली अगर परफॉर्म करें तो उससे कि हमारे जो ओबेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. इम्प्रूव हेल्थ. योगा नॉट ओनली मेंटेन बट इम्प्रूव आवर हेल्थ. Muscles become more strong. Various system of body like respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system, etc. become more efficient, resulting improvement in overall health. योगा से हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो बेटर इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि योगा करने से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है. ब्रीदिंग करने से, इनहेल एक्सेल करने से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है. इसके अलावा जितनी भी हम नीतिज करते हैं, ठीक है, चाहे वो जल नीति है, धोती है, इस तरह की नीतिज करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी क्लीन हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जो ये जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और प्यूरिफाई भी हो जाते हैं. Enhance moral and ethical value. Yoga is very significant for human being in present day life. By following first 2 steps of Ashtanga Yoga, Yam and Niyam, these values are enhanced. इसमें कहा गया है कि अष्टांग योग जो है बेसिकली ये इसके नेम से ही पता चलता है. अष्टांग मीन्स 8. तो इस तरह के जिसमें है अहिंसा, सत्य, असत्य, ये जो इतने भी है, संतोष, तप, इस तरह की जब वैल्यूज हम अपने आप में लाते हैं तो इससे क्या होता है, कोई भी पर्सन वो इंटरनली बहुत ही स्टेबल हो जाता है. वो कभी भी किसी का बुरा करने से पहले उसके अंदर एक आवाज़ आती है तो वो इस तरह की चीज़ें करने से अपने आप को रोक लेता है. एन इंडिविजुअल कैन अटेन
perfect health and lead a content life by performing yogic exercise daily. Thank you.